Linear algebra, paper 2, question 1. Prove that the set of all polynomials over R with constant term 2 is not a vector space over R. तो इस क्वेश्चन में आपको एक ऐसा सेट दे रखा है जिसमें बहुत सारी पॉलिनोमियल्स हैं fx सच दैट f0 इज 2. तो मुझे ये प्रूव करके देना है कि ये सेट एक वेक्टर स्पेस नहीं होगा. तो इस V से दो एलिमेंट मैंने लिए, एक hx और एक gx. अब क्योंकि hx gx vx में है तो h0 भी 2 होगा, g0 भी 2 होगा. पर जब मैंने h0 प्लस g0 किया तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया, जो कि 2 नहीं है. v के एलिमेंट होने के लिए यहाँ 2 आना चाहिए, बट h0 प्लस g0 मेरे पास 4 आते हैं, 2 नहीं आते. इसलिए h0 प्लस g0 v में नहीं है. हालांकि hx gx और h0 g0 दोनों v के एलिमेंट थे, इसलिए v इसका वेक्टर स्पेस नहीं हुआ. क्वेश्चन 2. अंडर व्हाट कंडीशन ऑन स्केलर्स b do the vectors 1 1 1 and 1b b square form a basis of v3c? You see that dimension of v3 is 3. Therefore the basis v3c will contain exactly 3 elements. But the set here which is given consists of only 2 elements. First is the 1 1 1 and the second one is 1b b square. It has only 2 elements. Therefore we cannot form a basis of v3 with these two vectors. Therefore for no values of b the given vectors form a basis of v3c. Question 3. Define linear functional. If Vf is a vector space, then the linear transformation T from V to F is called a linear functional. Question 4. If T is a map from V to W, be a linear transformation from vector space Vf to Wf, then prove that T is 0 equal to 0. To prove that T is equal to 0, you have to consider first let Tx is equal to W for x in V and W is in capital W. I have taken two elements, one from V and another one from W, such that Tx is equal to Tx plus 0. This x can be written as x plus 0. But T is a linear transformation, therefore Tx plus 0 equal to Tx plus T0. But Tx is W, Tx is W, so W will be cancelled out. And what I will remain with only 0 equal to T0. And that was what I want to prove here. Now look at the question number 5. In this question you are given with the subspace of R raised to 4R, and in this subspace, that is the set is consisting of an element A, B, C, D such that B minus 2C plus D equal to 0. I will prove that this W is a subspace of R raised to 4R, and no, it is given that it is a subspace of R raised to 4 into R, but you have to find out the dimension of W. Because W is a solution space of the equation of B minus 2C plus D equal to 0 or B is equal to 2C minus D. तो आपको करना क्या है कि इस W का बेसिस जब निकालना है तो इस W के एलिमेंट्स को मैंने कुछ सेट्स के कुछ एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है. जैसे W का एलिमेंट मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, ए बी सी डी एक कॉलम वेक्टर बनाया. तो इसमें देखो ये जो B है, B की वैल्यू यहाँ से आप लिख सकते हैं 2C माइनस डी. सिर्फ एक ही कंडीशन मेरे पास दे रखी है, और जैसे यहाँ अप्लाई करूँगा इसको फर्दर रिड्यूस करूँगा, तो इस रिडक्शन में आप देखो ये सारा प्लस करोगे तो यही चीज़ आने वाली है. तो कम से कम ये 3 वेक्टर तो मुझे ज़रूर चाहिए, एक 1 0 0 0 2 1 0 माइनस 1 0 1, ताकि इसका हर एलिमेंट जनरेट हो सके W का. तो यही मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं. तो यही मेरे को सोल्यूशन पे इसका बेसिस बना के देने वाले हैं. और ये कितने एलिमेंट हैं? 3. इसलिए डायमेंशन W का कितना हो गया? 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट linear transformation LT
t from r cube to r square defined by t x y z equal to x minus y comma y is not a 1-1. तो जब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को 1-1 नहीं प्रूव करना है तो क्या करना है आपको, दो एलिमेंट ले लीजिए इस तरह से कि वो इक्वल नहीं हो. एक 4 5 6 है, एक 4 5 8 है, ये दोनों इक्वल नहीं है. तो जब इनकी इमेज अंडर टी देखा मैंने, टी b1 की इमेज देखी तो मेरे पास -1,5 आया. ये कहाँ से निकाली मैंने, जो चीज़ गिवन है. x की वैल्यू रख दो 4, y की वैल्यू रख दो 5. तो tv1 का इमेज -1,5 आया, tv2 का इमेज भी -1,5 आया. इनकी इमेजेस तो सेम आ गई बट ये एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए t11 नहीं होगा. 7th क्वेश्चन, डिफाइन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. A linear transformation T from VF to W, F is said to be singular if and only if the null space of T contains at least one non-zero vector. Thus, if V is not zero, TV equal to 0 for some V belongs to capital V. Thus, T is said to be a singular linear transformation. क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 8 में आपको क्या करना है, यू हैव टू शो दैट सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेस of the form A B minus B A where A B belongs to C is a vector space over C under matrix addition and scalar multiplication. यहाँ जो C है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो ये देखो, ये वो सेट है 2x2 मैट्रिसेस का जिसके एलिमेंट आपको दिखाए गए हैं A B माइनस B A. इसको शो करना है मैंने वेक्टर स्पेस. तो वेक्टर स्पेस शो करने के लिए मुझे वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है. सबसे पहले तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. उससे पहले आप देखो कि इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है. जब भी m के दो एलिमेंट a और b मैंने लिए, a प्लस b करके देखा तो देखो डायगोनल एलिमेंट सेम है और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है उस पर सिर्फ नेगेटिव साइन अलग है. और अल्फ़ा a मतलब अल्फ़ा से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया. तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराना है. तो a प्लस बी करने पे देखो डायगोनल एलिमेंट सेम आ रहे हैं, ऑफ डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है, इसलिए a प्लस बी तो m में चला जाएगा. इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी की है. इसमें आप देखो चाहे a प्लस बी पे ब्रैकेट लगा के प्लस करो c, चाहे a प्लस बी प्लस c ऐसे करो, दोनों तरह से आपके पास सेम ही आंसर आने वाले हैं. तो ये मैंने करके दिखाया है, आप ये करके देखिए. सो एडिशन इज एसोसिएटिव इन M. अब बात आती है एडिटिव आइडेंटिटी की. थर्ड प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन. तो जीरो मैट्रिक्स अगर आप लोगे और M के किसी भी एलिमेंट में ऐड करोगे, जैसे A में 0 ऐड किया या 0 में A ऐड कर दो, तो मेरे पास वही A आ जाता है. इसलिए जीरो मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का M में बिलोंग करेगा और ये आइडेंटिटी की तरह ही बिहेव करेगा. अगली प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की. तो देखो A एलिमेंट मैंने M से लिया है, अगर माइनस A M से लूँगा तो A प्लस माइनस A करूँगा तो 0 यानी कि आइडेंटिटी आ जाएगा. इसलिए माइनस A एडिटिव इनवर्स हो गया M में. इसी तरह M में कोई भी एलिमेंट आप लोगे, उसका नेगेटिव लगाने पे आपको एडिटिव इनवर्स तो मिल ही जाएगा. मैट्रिक्स एडिशन में आपको पता है चाहे आप A प्लस बी करो या B प्लस A करो तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए एडिशन तो कम्यूटेटिव भी होगी. इस तरह एडिशन के अंडर जितनी प्रॉपर्टीज थी वो मैंने सेटिस्फाई कर दी. अब बात आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. स्केलर मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहला तो ये है कि आपको क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है. उसके लिए क्या करना है, अल्फ़ा लिया मैंने फील्ड से, a लिया मैंने m से, अल्फ़ा इंटू a देखा, फिर वो जो एलिमेंट आया वो भी m से ही है क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट सेम है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क है. सेकंड है, अगर दो एलिमेंट को फील्ड से लेता हूँ अल्फ़ा बीटा,
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए करूँगा तो मेरे पास क्या अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए आता है? यस। देखो मैंने सारा सिंप्लीफाई करके दिया है, तो ये अल्फ़ा ए प्लस बीटा ए आ गया। इस तरह से अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, जिसमें मैं अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी को शो करता हूँ अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बीटा। सिंपल है, ए मेरे पास और बी है, एम के एलिमेंट हैं, इनको पहले प्लस किया, अल्फ़ा से अंदर मल्टीप्लाई किया, बाद में अलग अलग कर दिया, तो अलग अलग करने पे मुझे अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बीटा मिल गया। तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर मेरी अगली प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अगली प्रॉपर्टी है अल्फ़ा बीटा, दो एलिमेंट मैंने सी से लिए हैं, एक एलिमेंट मैंने एम से लिया है, मैट्रिक्स जिसको वेक्टर स्पेस होना है, और अल्फ़ा इंटू ब्रैकेट बीटा ए, ये मुझे शो करना है अल्फ़ा, ये सिर्फ ब्रैकेट आपका इंटरचेंज होता है, पहले बीटा ए के साथ है, अब अल्फ़ा बीटा के साथ। तो ये जस्ट एक मैथमेटिकल प्रोसीजर है, आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास चार प्रॉपर्टी अभी तक अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ हो चुकी हैं। पांचवी प्रॉपर्टी में सिर्फ मैं वन एलिमेंट लेता हूँ, यूनिट एलिमेंट की बात होती है, यूनिटी की। कॉम्प्लेक्स नंबर से वन लिया है जो कि फील्ड थी, और एम से लिया ए, वन को सी से ए से मल्टीप्लाई करा तो ए ही आना चाहिए, तो ए ही आया है। इसलिए ये जो एम था उसने वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज, 5 अंडर एडिशन 5 अंडर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर दी है, इसलिए ये एक वेक्टर स्पेस बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में क्या करना है? Prove that union of two subspaces is a subspace if and only if one of them is a subset of the other. तो देखिए, let W1 and W2 be subspaces of vector space VF. Firstly, suppose W is equal to W1 union W2 be a subspace of VF. Then we wish to prove that either W1 is a subset of W2 or W2 is a subset of W1. If possible, suppose neither W1 is a subset of W2 nor W2 is a subset of W1. Implies there exists X belongs to W1 such that X does not belongs to W2, and Y belongs to W2 and such that Y does not belongs to W1. Therefore, X belongs to W1 implies X belongs to W1 union W2, implies X belongs to W, and Y belongs to W2 implies Y belongs to W1 union W2, so that X Y belongs to W. It means X plus Y also belongs to W, because W is a subspace of B, implies X plus Y belongs to W1 union W2. If X plus Y, अब देखो ना कि X plus Y मैंने यहाँ तक ये प्रूव कर दिया कि W1 यूनियन W2 में है, तो या तो X plus Y W1 में होगा ये तो अगर X plus Y W1 में है तो X plus Y और X दोनों W1 में आ जाएंगे, बट W1 तो सब स्पेस है, इसलिए इनका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो फिर W1 में चला जाएगा। अब इससे हुआ क्या कि Y W1 में चला गया, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। मैंने तो शुरू में सपोज किया था कि Y W2 में है, बट ये पहुंच गया जाके W1 में, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब X plus Y W1 में नहीं हो सकता। अब इससे उल्टा करके देख लेते हैं, X plus Y को लेट कर लेते हैं कि W2 में है, Y तो पहले W2 में, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी W2 में आएगा क्योंकि W2 सब स्पेस है, इट मीन्स X भी W2 में चला जाएगा। अब इसका देखो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि X W2 में नहीं था, वो W1 में था, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब X plus Y भी W2 में नहीं हुआ। तो मैंने ये प्रूव कर दिया, ना ही तो X plus Y W1 में है और X plus Y भी W2 में नहीं है, वो तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि X plus Y तो इन दोनों के यूनियन में है। अगर इन दोनों के यूनियन में होगा तो किसी एक में तो इसको होना ही होना है। देयरफॉर आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। ये सुपोजिशन कब थी कि मैंने सुपोज किया था कि ना ही W1 W2 का सबसेट है, ना ही W2 W1 का सबसेट है, और सुपोजिशन रॉन्ग हुई, इसलिए ये W1 W2 का सबसेट होगा ही होगा, या फिर W2 W1 का सबसेट होगा।
कन्वर्स देख लो ना। सपोज करो कि W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का। इन दोनों में से कोई भी एक आप सपोज कर सकते हैं। तो मैं प्रूव करके दूंगा कि W1 यूनियन W2 सब स्पेस है VF का। ये कैसे होगा? अब देखो, पहले अगर मैंने सपोज किया W1 W2 का सबसेट है तो W1 यूनियन W2 तो W2 के बराबर आ जाएगा। और अगर आप W2 को सबसेट लेते W1 का तो W1 यूनियन W2 W1 आ जाएगा। तो इट मीन्स W1 यूनियन W2 या तो W2 आएगा या W1 आएगा और कुछ नहीं आने वाला। पर W2 और W1 तो दोनों सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस के, इसलिए W1 यूनियन W2 भी सब स्पेस हो जाएगा वेक्टर स्पेस का। दैट्स ऑल। थैंक यू।